Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. If you are preparing for any competitive exams, then I am pretty sure that you may have seen these types of phrases in your exams that creates confusion. For instance, agreed with and agreed on, angry on versus angry at, compared to versus compared with. These types of words are called fixed prepositions. और ये एग्जामिनर हर एग्जाम में लाजमी पूछता है, कभी एमसीक्यूज की फॉर्म में, कभी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, और कभी यह कि सेंटेंसेस को की करेक्शन करनी होती है उस फॉर्म में वो पूछ लेते हैं। मैंने पिछले 3 दिन लगा के ऐसे 50 फिक्स्ड preposition की एक लिस्ट बनाई है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद जाहिद. I have completed my bachelor in English language and literature from University of Punjab, and it's been more than 3 years I have been teaching English to different levels of students. Today I'm going to share these 50 fixed prepositions with you. So let me share my screen with you and then we will start our lecture. I have divided this video into 2 parts ताकि ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो आपके लिए, एंड दिस वीडियो इज पार्ट 1. अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. द वेरी फर्स्ट फिक्स्ड preposition that we have is agreed to. We use it when we accept a plan, proposal or suggestion made by someone. We use it for the proposal, plan or suggestion. Okay, for example, he agreed to the new policy. Okay, it was a new policy. He agreed to new policy. When we are talking about plan, proposal, suggestion, a policy of someone else, then we have to use to with agreed. And if we talk about agreed with, that when we have to use agreed with, we use it when we share the same opinion as a person. When we agreed to a person, then we will use with along with agree. So I agree with you on this point. I agree with you, and here you is a person, that's why we use agreed with. Next is agreed on. We use it when 2 or more people reach a joint decision about something. For instance, we agreed on a fair price for the car. There were almost 2 people, more than 2, they agreed on the same price. Okay, next preposition is applied to. We use it for the institutions, organization, or person to whom a request is sent. For example, she applied to Punjab University for admission. तो applied to हम तब यूज करेंगे जब हम किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को कोई एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जॉब के लिए या एडमिशन के लिए. नेक्स्ट इज अप्लाइड फॉर. वी यूज इट फॉर द थिंग्स बीइंग रिक्वेस्टेड सच एज अ जॉब, स्कॉलरशिप और पोस्ट. इसके एग्जांपल देख लेते हैं. ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर. हम अप्लाइड फॉर तब यूज करेंगे जब हम किसी पोस्ट के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए हम अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट कर देंगे. हमारा नेक्स्ट preposition है compared to. हम compared to तब यूज करते हैं when pointing out similarity between two basically different things. बेसिकली हम ये तब यूज करते हैं जब हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, बट वो बेसिकली क्या होती है, 2 डिफरेंट थिंग्स होती हैं, तब हम ये यूज करते हैं. हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल है द पोएट कंपेयर्ड लाइफ टू अ फ्लोइंग रिवर. तो कंपेयर टू हम यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, 2 डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हो. यहाँ पर लाइफ है एक चीज और दूसरी रिवर है. तो लाइफ और रिवर का एज सच कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मीन्स के वो सिमिलर चीजें नहीं है, बट पोएट ने क्या किया है, उनका कंपैरिजन कर दिया है. So our next preposition is compared with. ये हम कब यूज करते हैं, when mixing the similarities or differences between 2 things of the same kind. एक ही तरह की 2 चीजें होती हैं, उसके दरमियान जब हम comparison करते हैं तो हम compared with यूज करेंगे. Compare this year's result with the last year's result. अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज क्या है, कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है, रिजल्ट्स का हो रहा है. तो रिजल्ट्स सेम चीज है, बट यहाँ पर सिर्फ ईयर्स का फर्क आ रहा है, दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर. नेक्स्ट हमारे पास है एंग्री एट एंड एंग्री विद. एंग्री विद हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर एंग्री एट अ पर्सन. जब किसी पर्सन पे हम गुस्सा करते हैं तो तब हम एंग्री विद यूज करेंगे उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, शी इज एंग्री विद हर यंगर ब्रदर. पर्सन ब्रदर इज अ पर्सन, उसके लिए हम एंग्री विद यूज करेंगे. और एंग्री एट हम कब यूज करेंगे, व्हेन वी आर एंग्री अबाउट सिचुएशन, इवेंट और थिंग्स रादर देन अ पर्सन. किसी एक पर्सन की बजाय हम किसी चीज पे, किसी सिचुएशन पे गुस्सा करते हैं तो तब हम ये यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटेंस है, ही वाज एंग्री एट द सडन डिले इन द फ्लाइट. तो वो बेसिकली गुस्सा किस चीज पे था, डिले पे, जो सडन डिले हो गया था. तो इसलिए एंग्री एट यूज हुआ है, क्योंकि ये पर्सन नहीं है, ये एक सिचुएशन है. नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन है गुड एट.
versus good with. We use good at to show that someone is skilled in doing something. जब कोई एक पर्सन कोई एक काम करने में माहिर होता है तब हम skilled good at यूज करते हैं उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, she is good at solving mathematical problems. तो ये पर्सन है और वो एक सिचुएशन पे उसकी एक स्किल है उसके पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की, तब हम उसके लिए करेंगे गुड एट यूज करेंगे फॉर द स्किल्स. हम गुड विद हम कब यूज करते हैं? टू शो दैट समवन हैंडल पीपल और थिंग्स वेरी वेल. मीन्स कि हम हैंडलिंग की सिचुएशन में यूज करते हैं, स्किल की सिचुएशन में यूज नहीं करेंगे इसको. फॉर इंस्टेंस, he is very good with children. He is very good to handling with children. Next is good for. We use it to show that something is beneficial or useful. For example, regular exercise is good for health. Next is differ from. So we use it when comparing two things that are unlike each other, that are very different from each other. We use to compare them. For example, यहाँ पर एक sentence है, his handwriting differs from his brother. So यहाँ पर क्या differ from use हुआ है? क्योंकि उसकी जो writing है वो उसके brother की writing से different है. Next is differ with. We use it when we disagree with a person's opinion. जब हम एक किसी पर्सन के ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं तब हम यूज करेंगे. I differ with you on this issue. Differ with हमने यूज किया यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन इशू की बात हो रही है या सिचुएशन की बात हो रही है और उस पर आपका डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, मेरा डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? डिफर विद यूज करेंगे. नेक्स्ट इज डील विद. वी यूज इट व्हेन वी हैंडलिंग और मैनेजिंग अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और टास्क. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, द मैनेजर विल डील विद द कंप्लेंट पर्सनली. अब डील विद हमने यूज किया क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लेंट थी या प्रॉब्लम थी या एक सिचुएशन थी, उसके साथ मैनेजर पर्सनली डील करेगा, तो हम इसलिए हम डील विद यूज कर रहे हैं इसके साथ. नेक्स्ट है हमारे पास डील इन. डील इन हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं? वी यूज व्हेन वी रेफर टू बिजनेस और बाइंग और सेलिंग पर्टिकुलर गुड्स. ओके, जब हम किसी बिजनेस की बात करें या सेल परचेज की बात करें तब हम डील इन यूज करेंगे. फॉर इंस्टेंस, द शॉप डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. जो ये शॉप है ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की डील करती है, डील इन यूज करेंगे हम कि वो सेल एंड परचेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. और नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन. वी यूज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट व्हेन समवन इज ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज ऑफ रेस, जेंडर और रिलीजन. जब कोई अनफेयरली ट्रीट करता है किसी भी वजह से, रेस की वजह से, रिलीजन की वजह से, तब हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट. सेंटेंस देख लेते हैं. द लॉ फॉरबिड्स एम्प्लॉयर्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वुमेन. अब वुमेन को किस बात पे डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है? वुमेन की जेंडर की बेस पे, तो हम इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन. वी यूज इट व्हेन वी आर मेकिंग अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टू थिंग्स. हम बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बना रहे हैं दो चीजों के बारे में, तब हम यूज करेंगे. Children must learn discriminate between right and wrong. Okay? अब discriminate between से ये एक ही वर्ड से कैसे पूरा का पूरा एक सिनेरियो चेंज हो जाता है. जब हम डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट की बात करते हैं तो ये नेगेटिव में आ जाता है, और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन करते हैं तो ये पॉजिटिव में आ जाता है. और चिल्ड्रन को क्या चाहिए? राइट और रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए. नेक्स्ट इज फेमिलियर विद एंड फेमिलियर टू. हम फेमिलियर विद यूज करते हैं व्हेन अ पर्सन नोज समथिंग वेल. जब एक पर्सन बहुत अच्छा जानता है तो तब हम फेमिलियर विद यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस, आई एम फेमिलियर विद दिस सॉफ्टवेयर. वो इस सॉफ्टवेयर का इन अदर सेंस इज एक्सपर्ट, उसे बहुत अच्छा नॉलेज है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फेमिलियर विद. जब एक पर्सन क्या करता है? नोज समथिंग वेरी वेल. नेक्स्ट इज फेमिलियर टू. We use it when something or someone is known to other people. Okay? जब एक पर्सन किसी और पर्सन का जानने वाला होता है. फॉर इंस्टेंस, आई एम नोन टू यू. इस सेंस में his face is familiar to. Okay? His face is familiar to everyone in the. Next is result in. Result in हम यूज करते हैं when an action produced an effective outcome. जब एक एक्शन होता है वो इफेक्टिव आउटकम प्रोड्यूस करता है तो तब हम रिजल्ट इन यूज करेंगे. फॉर इंस्टेंस, यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, हिज हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस. उसका जो हार्ड वर्क था वो किसमें, उसका रिजल्ट किसमें आया? सक्सेस में आया. नेक्स्ट इज रिजल्ट फ्रॉम. ये हम कब यूज करेंगे? वी यूज इट व्हेन समथिंग इज कॉज्ड बाय प्रीवियस एक्शन. जब एक पिछले एक्शन की वजह से एज अ रिजल्ट कोई एक्शन होता है, कोई बात होती है, तो वो होता है. रिजल्ट्स कम फ्रॉम कॉज. Okay, success results from hard work and
डेडिकेशन। अब यहाँ पर सेंटेंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मीन्स के सेंस में उनके मीनिंग में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर यूज़ का डिफरेंस है, यहाँ पर प्रेपोजिशन के यूज़ का डिफरेंस है। रिजल्ट्स फ्रॉम हार्ड वर्क जब हम यूज़ करेंगे तो हम क्या बात कर रहे होंगे कि भाई एक एक्शन हुआ है और उसके रिएक्शन में हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हैं। नेक्स्ट इज वेट फॉर एंड वेट ऑन। वेट फॉर हम यूज़ करते हैं व्हेन एक्सपेक्टिंग द अराइवल ऑफ पर्सन अ थिंग, like I am waiting for the bus. Okay, bus is here is a thing, and if someone is waiting for someone, he can say I'm waiting for Ali. Okay, I'm waiting for Alia, something like this. And wait on, we use it when serving someone, especially in the restaurant or hotel. Okay, the waiter waited on the guest politely. Waited on means she waited on for the guests, और ये हम स्पेशली कब यूज करते हैं, जब रेस्टोरेंट या होटल की बात हो रही हो तब हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज केयर फॉर एंड केयर अबाउट। वी यूज केयर फॉर व्हेन लुकिंग आफ्टर समवन और लाइकिंग समथिंग। जब हम किसी को पसंद करते हैं या किसी की हम केयर करते हैं तो तब हम लुकिंग केयर फॉर यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया हुआ है, शी केयर्स फॉर हर एल्डरली पेरेंट्स। वो अपने जो उनके बूढ़े पेरेंट्स हैं उनकी वो क्या करती है, केयर करती है। केयर फॉर मीन्स के शी इज लुकिंग आफ्टर। लुकिंग आफ्टर मीन उनकी देखभाल कर रही है। नेक्स्ट इज केयर अबाउट। वी यूज इट व्हेन समथिंग मैटर्स टू अस इमोशनली। When we are talking about emotions, then we use care about. Like he really cares about his students' future. ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए तो इस वजह से मैं वीडियो को इधर ही एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल रहा होगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी वो ले सकते हैं। आप लाजमी हो जाकर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।